Hello everyone. Today discuss solid waste management. Topic is functional element of solid waste management. First one, there are various functional elements: waste generation, waste handling, and storing, storage, collection, etc. Transfer and transport, recovery and recycling, waste disposal. Waste generation. How can waste generate? How can waste handling? How can waste transfer? How can waste transport? How can waste recovery, recycling, and finally waste disposal? Next is waste collection. How can collect the waste? Collection of the waste are the important functional key element because waste cannot be collected at the source. For collection of waste, different hauling equipment and container are needed. There should be large capacity of one week waste. Second one, transfer and transport. The transfer and transport element involves two steps. First one is the transfer of waste from the smaller collection vehicle to the larger transport equipment. Second one, the subsequent transport of the waste for long distances to a disposal site. The transfer usually take place at a ट्रांसफर स्टेशन. यहाँ पे टॉपिक ये है ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट. कैसे ट्रांसफर करेंगे, कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे. सपोज कीजिए हमें 2 किलोमीटर के अंदर वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करना है. जो ऑरिजिन पॉइंट है वहां से हमें 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर वेस्ट को ले जाना है. तो हमें कंटेनर कैसा होना चाहिए. ऐसा कंटेनर तो नहीं है कि वेस्ट जो ड्यूरेशन है उस दरमियान वेस्ट गीला जो भींगा हुआ वेस्ट है वो बाहर तो नहीं निकल रहा है. इससे होगा क्या, आपका इन्वायरमेंट गंदा होगा, इन्वायरमेंट हेल्दी नहीं होगा. सो कंटेनर विल बी very important parts. Good types of containers, no destroy, otherwise transport will be not completed. That means transfer and transport. Now recovery and recycling, this is also very important. In our government various project given how can recovery and how can recycling of waste. Various type of project occurs on this topic, recovery and recycling. कैसे हम recycling कर सकते हैं, कैसे हम recovery कर सकते हैं. Recovery involves the separation of valuable resources from the mixed solid waste delivered at transfer stations or processing plants. अब आप कहाँ से ट्रांसफर कर रहे हो, अब प्रोसेसिंग प्लांट्स कहाँ आपका, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना आपका है. उस ड्यूरेशन में जो वेस्ट है वो कहीं रोड साइड पे निकल तो नहीं गया. यदि रोड पे भी आपका वेस्ट जाएगा, किला वेस्ट जाएगा, इन्वायरमेंट आपका गंदा होगा, हेल्दी नहीं हो पाएगा आपका. सो प्रॉपर इन प्रॉपर वे processing plants will be considered. It also involves size reduction and density separation by air classifier, magnetic device for iron and screens for glass, etc. Size reduction means how can reduce the size. How can reduce the size? We will discuss in next topic. Now, some recovered materials such as glass, plastic, paper can be recycled
as they have economic value. जो टूट जो ग्लास है, प्लास्टिक्स है, पेपर वेस्ट है, इसको हम रिसाइकल करेंगे। डे बाय डे क्या हो रहा है, प्लांट को हम लोग कट कर रहे हैं, तो अब मेरा एनवायरमेंट हेल्दी नहीं हो रहा है। जो ग्लास है, जो प्लास्टिक है, उसको हम कहीं भी फेंक देते हैं। उसको हमें एक प्रॉपर, इस जिस कॉलोनी में आप रहते हो उस कॉलोनी के बाहर एक प्रॉपर टैंक बनाना चाहिए, जहाँ पे हम जो ग्लास मटेरियल है, प्लास्टिक्स है, पेपर है, उसको वहाँ पे हम लोग डंप कर दें। अब म्युनिसिपल वेस्ट के मेंबर आएंगे और वो कलेक्ट करेंगे। ग्लास को अलग कलेक्ट करेंगे, प्लास्टिक को अलग कलेक्ट करेंगे, पेपर को अलग कलेक्ट करेंगे, एंड देन this material will be transported to the manufacturing plant and recycled, then recycled. That means जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिसाइकल करना आज के डेट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आवर एनवायरमेंट विल बी नॉट हेल्दी। नेक्स्ट पॉइंट, वेस्ट डिस्पोजल। हाउ कैन वेस्ट डिस्पोज्ड, कैसे हम वेस्ट को डिस्पोज करते हैं। द फाइनल एलिमेंट इन द वेस्ट सॉलिड वेस्ट is disposal. Disposal of waste in the serious concern because of the unplanned disposal is harmful for the human health and environment. In this element, that waste is disposed which is not further use of society. Nowadays, the disposal of waste by landfilling or uncontrolled dumping. Here, disposal. How can dispose the waste? डंपिंग मेथड जो है, डंप जो है आपका ओल्डेस्ट मेथड है, या रूरल एरिया में इसको प्रोवाइड किया जाता है। हम लोग वेस्ट को कलेक्ट करके जो सम डिस्टेंस पे जो वेस्ट लैंड है वहाँ पे हम लोग डिस्पोज करेंगे। देन when dispose will be finished, then this is the very important manure will be collected, जिसको हम लोग खाद कर सकते हैं। उसको फाइनली हम लोग जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ यूज करेंगे, तो लैंड का जो फर्टिलाइजर है वो बढ़ जाता है। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंस है, खास के जो फार्मर है, क्योंकि इंडिया बेस्ड ऑन फार्मर। यदि किसान काम नहीं करेंगे तो इंडिया इज नॉट डेवलपिंग। दैट मीन्स dumping method is the oldest method. Right now, various methods will be considered. So, waste disposal is a very very important term. How can disposed? Suppose करें मैंने डिस्पोज कर दिया, उससे कहीं हमारे कॉलोनी, हमारे जो रेसिडेंस है, हमारे जो हॉस्पिटल है, स्कूल्स एक्सेट्रा, उसको डैमेज तो नहीं कर रहा है। मीन्स वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट तो नहीं हो रहा है। हमें ये भी ध्यान रखना है, जहाँ पर आप डिस्पोज कर रहे हो वहाँ पे उसके सराउंडिंग, उसके सम डिस्टेंस पे स्कूल हो सकता है, रेसिडेंस हो सकता है, इंडस्ट्री हो सकता है, एक्सेट्रा। कोई इफेक्ट तो नहीं हो रहा है कहीं।
यदि इफेक्ट हो रहा है दैट मीन्स हम गलत हैं। तो हमें डिस्पोज अच्छे तरह से करना चाहिए और उस जगह करना चाहिए जिसके सराउंडिंग का जो इन्वायरमेंट है वो इफेक्ट होना चाहिए। यदि इन्वायरमेंट इफेक्ट होगा तो हम इफेक्ट होंगे, देन फाइनली ह्यूमन आर अफेक्टेड। सो हमें ध्यान रखना है किस जगह हम डिस्पोज कर रहे हैं, कैसा जगह है, इससे किसी को नुकसान ना हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्कूल्स हो, हॉस्पिटल हो, रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो, एक्सेट्रा। ओके, थैंक यू।